Okay, today we are going to see the chapter 1 of S.C. Verma, volume 1, concept of physics. Introduction to the physics, first chapter. Okay, we'll solve the some of the questions all the questions of the short answers and objective 1, objective 2 and exercise. So let us take the first question of short answers. Meter is defined as distance traveled by light in this much time. Why don't people choose this number this much second? Because in this much time light travels exactly 1 meter in vacuum. Okay, if we take this time, light will travel lesser than 1 meter. Okay, why not 1 second? Okay, 1 second, in 1 second light covers these many meters. It is close to 3 lakh kilometer, which is very large to measure accurately. Okay, next one is, what are the dimensions of the volume of cube and sphere and their ratio? All the volume will have the same dimension, m0 l cube t0, so therefore ratio will be dimensionless. Now suppose you are told that linear size of the everything in the universe has been doubled overnight. Can you test this statement by measuring the size with the meter stick? No, answer is no, because meter stick will also be doubled. If this is the object, the object is doubled, meter stick is also double. We cannot measure. Okay, can you test this using the fact that the speed of light is universal constant and has not changed? Yes, with this we can do it, because the speed of light in vacuum remains unchanged and time also doesn't change. So it will travel in 1 second, it will travel 1 meter only. There will not be any change in the measurement when we take the time is not changing, therefore the measurement with the light will be accurate. We will come to know there is the dimensions of universe are changed or not, but it is given in second part. What happens if clock in the universe also starts running at half the speed? Okay, then again we will not be able to measure accurately, because now clock running at half speed means they are slow, therefore time also doubles. Clock reads 12 hours, we will have 24 hours. So suppose light was this much was the 1 meter traveled by the light in previous case, now time is double, distance is double, time is also double, so light will also not be able to find is there any change, because time in double time it will travel double distance. Okay, so therefore answer is no in the third case. If all the terms in the equation have same units, is it necessary that they have the same dimension? Yes, बिकॉज देखो पहले फिजिकल क्वांटिटी बनी, फिर यूनिट्स बने, फिर डायमेंशन बने, है ना. तो यूनिट्स जो हैं, अगर यूनिट्स सेम हैं तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी, सेम यूनिट्स रिमेन्स फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना. फिजिकल क्वांटिटी ये दैट SI यूनिट ऑफ सिस्टम है ना. ऑल द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है द सेम यूनिट्स, है ना. तो सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं तो डायमेंशन भी सेम आएंगी, है ना. इसका रिवर्स देखते हैं. इफ़ ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, इट इज़ नेसेसरी दैट दे हैव द सेम यूनिट्स. नो, ये ड्रॉबैक है डायमेंशंस का कि बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, जैसे फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर स्पीड, है ना. तो दे हैव द सेम डायमेंशन, है ना. T⁻⁻⁻⁻ आएगा, राइट. और बट दे हैव द डिफरेंट यूनिट्स, है ना. उनका यूनिट डिफरेंट है. फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, एंगुलर स्पीड का रेडियन पर सेकंड होता है ना. तो डायमेंशंस का एक ड्रॉबैक है कि वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम डायमेंशन देता है, और वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ में भी डिफरेंस नहीं बता पाता है. ओके, लेट्स सी. If two
Next question, if two quantities have the same dimensions, do they represent the same physical quantity? No. Velocity and speed have the same dimension, but they are different, है ना. डायमेंशन सेम है, बट फिजिकल कंटेंट जो है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिफरेंट है. वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड जो है इसमें डायरेक्शन नहीं होती है. ओके. नेक्स्ट वन इज, it is desirable that the standard sub unit be easily available. ओके. इनवेरिएबल, चेंज नहीं होने चाहिए. इंडेस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए. एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल, उनको दोबारा जल्दी से बना सकें. इफ़ वी यूज़ फुट ऑफ द पर्सन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, विच ऑफ दीज फीचर्स आर प्रेजेंट एंड विच आर नॉट. इजीली अवेलेबल है, ठीक है. इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, बट इनवेरिएबल जो है, इनवेरिएबल नहीं है, ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, है ना. इंडिस्ट्रक्टेबल, है ना, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ये, है ना. एवरी पर्सन हैज़ गॉट द लिमिटेड लाइफ इन दिस यूनिवर्स. ओके. सजेस्ट ए वे टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर्स. क्या करो, उनका बंडल बना लो ऐसे, एक के ऊपर एक रख के. फिर उसकी ये वाली थिकनेस मेज़र कर दो. थिकनेस मेज़र करने के बाद कितने पेजेस है वो काउंट करके डिवाइड कर दो, तो एक पेज की थिकनेस वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट आ सकती है. सिंगल पेज की मेज़र करेंगे तो एरर्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून निकालनी है, तो एक पैरेलैक्स मेथड होता है जिसमें सपोज 2 पॉइंट ले लिए जाते हैं अर्थ पर, है ना. सपोज डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट, फिर हमने देखा मून का जो है एंगल कितना बना रहा है वो मेज़र किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, है ना. तो ये थीटा हो गया, प्लेन एंगल हो गया. दिस इज़ इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये जो रेडियस होगी ये डिस्टेंस होगी मून की. आर्क क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा, है ना. तो ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो है वी कैन यूज़ द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना. दिस विल बी द एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल. आर्क सेकेंड और आर्क मिनट, है ना. आर्क मिनट इज़ व्हाट, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. आर्क सेकेंड इज़ व्हाट, है ना, 1 आर्क मिनट को और 60 डिग्री और 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दो, है ना. तो 1 आर्क सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/3600 डिग्री. डिग्री का 1 डिग्री को 3600 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 1 आर्क सेकेंड बनता है ना. तो दिस इज द मेथड टू मेजर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. इवन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सन, है ना. सपोज ये थोड़ी देर के लिए समझ लो ये सन है, ये अर्थ है, तो ये ऐसे ये एंगल मेज़र कर लेंगे सन के दोनों डायमीटर का, और ये 1 पारसेक होता है ना, पैरालैक्टिक सेकेंड. ये डिस्टेंस जो है क्लोज टू 1.5 इंटू 10⁻11 होती है, नॉट पारसेक, इनफैक्ट AU बोलते हैं, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज़ क्लोज टू 1.5 इंटू 10⁻11. तो उससे हम सन का डायमीटर निकाल सकते हैं अर्थ से यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड. देन विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. इसकी कंडीशन ये होती है कि जैसे ये जो थर्ड क्वांटिटी है ये दोनों पे डिपेंड न करे, फुल्ली डिपेंड न करे, है ना. जैसे हम देखते थर्ड ऑप्शन बी को पहले देखते हैं. इसकी डायमेंशन L है, टाइम की डायमेंशन T है, वेलोसिटी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है L/T. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हम किसी दूसरी क्वांटिटी का इसके टर्म्स में डायमेंशन निकालें तो इक्वेशन नहीं बनेगी, कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, है ना. इसीलिए द थर्ड क्वांटिटी शुड नॉट बी फुल्ली डिपेंडेंट, है ना. जैसे ये लेंथ है, ठीक है, वेलोसिटी में एक लेंथ आई, बट दूसरा मास है तो वेलोसिटी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है लेंथ पे. ऐसे ही ये भी, ऐसे ही ये भी, है ना. ऑफ कोर्स ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये तो हम लेते हैं लेंथ मास टाइम, दे आर द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़, है ना. और ये देखते हैं मास एंड टाइम, है ना. देखो वेलोसिटी जो है मास एंड टाइम पे पूरा डिपेंड नहीं कर रही, टाइम है लेकिन लेंथ आती,
तो दिस कैन रिप्रेजेंट, दिस कैन रिप्रेजेंट, दिस कैन रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस एज एन यू, है ना, वेयर यू इज द यूनिट एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ऐसा समझो इसको, एक ये रॉड है जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर है, जिसको हम 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2 जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एम इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर ये 200 N2 है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है कौन सा, CGS का, तो U2 इज अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इक्वली होंगे बिकॉज लेंथ तो कांस्टेंट है ना। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो देयरफॉर N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, है ना। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी, द बिगर द सिस्टम ऑफ यूनिट स्मॉलर विल बी द bigger the system of unit smaller will be the numerical value, smaller the system of unit bigger will be its numerical value, ऐसा बोला जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, सिस्टम ऑफ यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, जैसे ऐसा ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड in terms of MLT given by this relation, the quantity of mass जो है किस पे डिपेंड करेगा वो बात कर रही है। तो इट ऑलवेज डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX, नो वी कैनॉट से, बिकॉज उस क्वांटिटी में मास होना तो चाहिए ना पहले, जैसे पेंडुलम के टाइम पीरियड में मास होता ही नहीं, फिर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको इसके साथ। नेवर भी नहीं बोल सकते जब तक हमें पूरा पता नहीं है। थर्ड में देखते, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LT एंड X इफ A इज 0, अगर A 0 हो गया तो ये पूरा ये क्वांटिटी बचेगी ही नहीं यहाँ पर, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट, है ना। तो देयरफॉर लास्ट ऑप्शन मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दिस इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, M उसमें रहना चाहिए उस रिलेशन में, मास की, है ना, की डायमेंशन रहनी चाहिए उसमें, देन ओनली वी कैन रिप्रेजेंट, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है जिसमें डायमेंशन नहीं है, दैट मे हैव द यूनिट, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते नेवर हैव द यूनिट, अभी चेक करते, ऑलवेज हैव यूनिट ये भी नहीं बोल सकते, डजंट एग्जिस्ट ऐसे भी नहीं बोल सकते, मे हैव यूनिट, डायमेंशन नहीं है बट यूनिट होता है, क्योंकि पहले यूनिट आई थी बाद में डायमेंशन बने, है ना। तो फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनके यूनिट्स होते हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन, बट डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज इनकी डेफिनेशन से देखो, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, है ना। तो आर्क इज द लेंथ, रेडियस इज द लेंथ, तो एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एल बाई एल, तो डायमेंशन 0 हो गई, नो डायमेंशन, बट इसका एंगल इसका यूनिट होता है रेडियन, प्लेन एंगल का, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब यूनिट नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया यूनिट्स पहले आई और उसके बाद डायमेंशन बनाया गया है ना। तो यूनिट्स नहीं है तो डायमेंशन नहीं होंगे, है ना, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से आएंगे। तो लेट्स सी, तो यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, नॉन ज़ीरो डायमेंशन मतलब उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन है, ये मतलब हुआ, है ना, कुछ ना कुछ डायमेंशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता यूनिट तो है नहीं डायमेंशन होगा, नो। तो ये नेवर हैज़, तो यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ नॉन ज़ीरो, आई मीन ओके, देखो जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया है ना, विल ऑलवेज हैव ज़ीरो डायमेंशन, है ना, ज़ीरो डायमेंशन होगी, दैट इज़ मतलब यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका यूनिट नहीं है, है ना, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होंगे। तो ये मतलब हुआ इसका, देखो नेवर हैज़
नॉन ज़ीरो डायमेंशन मतलब इट विल ऑलवेज हैव ज़ीरो डायमेंशन, है ना, ज़ीरो डायमेंशन होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद डायमेंशन है, तो यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, मे हैव नॉन ज़ीरो डायमेंशन, है ना, मतलब यूनिट तो नहीं है बट डायमेंशन हो सकता हो, ये भी सही नहीं है। डजंट एग्जिस्ट ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं है ना, तो डायमेंशन ऑलवेज ज़ीरो, ए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था डायमेंशन में, ये जो होता है साइन, ये एंगल होता है, इनफैक्ट एंगल इज डायमेंशनलेस, है ना, यूनिट तो है उसकी, डायमेंशनलेस है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसको आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं ना। तो x बाई ए, तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसका मतलब जो x का डायमेंशन है वो a का डायमेंशन होगा, x एंड a शुड हैव द सेम डायमेंशंस, है ना। आगे देखते, अभी यहाँ पर देखो dx चेंज ऑफ लेंथ है ना, तो उसका डायमेंशन लेंथ का ही होगा, राइट। और ये वाला टर्म देखो अंडर रूट वाला, रूट के अंदर है, लाइक डायमेंशन कैन बी एडेड, है ना, तो a का डायमेंशन x के बराबर ही है, तो रूट के अंदर x स्क्वायर है, तो बाहर आ गया तो x दैट इज l, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डायमेंशंस इक्वल हो गई, तो ये डायमेंशन हो गए। लेफ्ट हैंड साइड जो है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशनलेस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, राइट हैंड, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड समेशन, तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ये तो डायमेंशनलेस है। नाउ ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 0, है ना, तभी तो a जो है, a की डायमेंशन l की है, उसकी पावर 0 लगा दो तो वो वहाँ से हट ही जाएगी, वो है ही नहीं वहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो n शुड बी 0 बिकॉज डायमेंशनलेस बनाना है, तो n को 0 करो बिकॉज a हैज़ द डायमेंशन, है ना, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2। तो ये डायमेंशन दी हुई हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डायमेंशन हमने देखेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन के साथ मैच होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो पुट द वैल्यू, फोर्स की डायमेंशन पुट करो, एक ही तो सेम आएंगी, एंड एनर्जी डेंसिटी इज ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होती है, और इनकी डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर भी होती है, एंड मॉडुलस होते हैं, स्ट्रेस जो है मॉडुलस से रिप्रेजेंट किए जाते, मॉडुलस जो स्ट्रेस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 3 मॉडुलस, है ना, तो उनकी डायमेंशन भी सेम आती है। तो वी हैव दिस 5 क्वांटिटीज हैविंग द 6 क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, हाँ मे बी करेक्ट, है ना, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड ये है, तो इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के बराबर है, तो मे बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, है ना, इसी में सपोज हमने 2 पाई हटा लिया, 2 पाई की डायमेंशन पहले से भी नहीं थी, अभी भी इसकी डायमेंशन सेम है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का है फार्मूला, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो ये हमने 2 पाई हटा दिया, डायमेंशन अभी इसका भी सेम है, बट इनकरेक्ट हो गई है, ठीक है। नाउ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, नहीं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, डायमेंशन अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की अलग आ गई, है ना, तो वो कभी करेक्ट इक्वेशन हो ही नहीं सकती। सबसे पहली कंडीशन है कि डायमेंशन करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो करेक्ट हो सकती है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, है ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इनफैक्ट मस्ट बी इनकरेक्ट, है ना, मे बी ठीक है, चलो मे बी और मस्ट बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशन ही इक्वल नहीं है, तो फिर वो इक्वेशन कभी करेक्ट नहीं हो सकती, है ना, ठीक है। तो सही है ये स्टेटमेंट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट और मस्ट बी इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। यस, ऑल फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से ही बनाई जाती है, जो हमने 7 बेस क्वांटिटी पढ़ी है, कितनी है 7, है ना, 7 डेज वीक में होते हैं, 7 कलर्स हैं रेनबो में, सिमिलर टू दैट वी हैव द 7 बेस क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट्स, ओके।
तो ये सही है। बेस क्वांटिटी कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो हमें जैसे लेंथ को मास के साथ नहीं इक्वेट कर सकते या करंट के साथ नहीं इक्वेट कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती, तो वी कैन नॉट इक्वेट देम। ठीक है, ओके, दिस करेक्ट। नेक्स्ट वन, द डायमेंशंस ऑफ वन बेस, ए बेस क्वांटिटी मीन्स वन बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। फिर से वही है ना, सपोज डायमेंशन ऑफ लेंथ है, इन डायमेंशन ऑफ लेंथ डायमेंशन ऑफ मास विल नॉट बी प्रेजेंट, है ना, लेंथ की डायमेंशन में मास नहीं आएगा या करंट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट है। एक डायमेंशन जो बेस क्वांटिटी की एक ही डायमेंशन में दूसरे डिपेंड नहीं करते, ऑलमोस्ट ये दोनों पॉइंट सिमिलर हो गए ना। नाउ द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो। फिर से देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो इन बेस क्वांटिटी, है ना, यही बोल रहा है कि बेस क्वांटिटी में डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। देखो इनकरेक्ट इक्वेशन है, तो कैसे, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ये है, तो इट हैज़ जीरो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम इज़ द बेस क्वांटिटी, है ना, और उसमें डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन जीरो हो सकती है ना, वेलोसिटी की डायमेंशन जीरो हो सकती है ना। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ नेवर जीरो, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना, तो नेवर जीरो बोला। नेवर वाले जो होते हैं या मस्ट वाले होते हैं या ऑलवेज वाले होते हैं, तो ये जनरली इनकरेक्ट ही आते हैं ना, इतना फोर्सबली बोला जाता है, तो उसको बहुत क्रॉस चेक करना है। मोस्टली दे आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।